Hello children, welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all are watching the videos and you must be knowing that we are doing chapter 2 of your maths textbook. We have already started this chapter and we have completed few of the exercises that is related to addition. Children, we have done addition of two-digit numbers, both in expanded form as well as vertical addition. Both we have already done. Then we have started three-digit addition without regrouping in expanded form as well as vertical addition. That also we have completed. We have completed addition of three-digit number in expanded form, and in vertical form also, vertical addition also we have done of three-digit numbers, but we have done that without regrouping. Till now we are doing addition without regrouping. Okay. In today's video we are going to start addition stories. Statement sums जो होते हैं that we are going to start. So that too also is without regrouping. जो अभी हम करने जा रहे हैं एडिशन स्टोरीज वो भी विदाउट रीग्रुपिंग वाला है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इट इज ऑन पेज नंबर 45 ऑफ योर मैथ्स टेक्स्ट बुक. चिल्ड्रन, ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 45. Let me write here addition stories. Addition stories. Student, first question is, Rohan has 365 marbles. Cherry has 204 marbles. How many marbles do they have all together? Okay, the question is, Rohan is the name of a boy. Rohan has 365 marbles. Okay, Rohan has 365 marbles. Cherry has 204 marbles. Okay. Now the question is, how many marbles? How many marbles do they have all together? Do they have all together? Okay. So what are we supposed to do? हमें क्या करना है? Children, at your standard, though statements are not there, but you should know how to write simple statements. आपको छोटे छोटे statements लिखने आने चाहिए. आपको पता है कि इसमें करना क्या है. रोहन के पास 365 marbles, चेरी के पास 204 है. तो how many marbles do they have all together? All together मतलब कुल मिलाकर. तो पूरा मिलाकर. इसका मतलब क्या करना है, हमें ऐड करना है. पूरे मार्बल्स कितने हैं, पूरे मिलाकर मार्बल्स कितने हैं. तो हमें क्या करना है, हमें करना है ऐड. किसको ऐड करना है, these two numbers. तो अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंपल स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे. ठीक है. रोहन हैज, आप डायरेक्टली सिंपल लिखेंगे जैसे आपके बुक में लिखा है. रोहन हैज 365 marbles. Okay. Has 204 marbles. तो हमें क्या करना है, टोटल मार्बल्स.
टोटल मार्बल्स कितना होगा 365 प्लस 204. ओके 365 प्लस 204. अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. 365 प्लस 204 दोनों को हम ऐड करेंगे. तो कैसे ऐड करेंगे, हमने एडिशन सीखा ना. 5 और 4 को हम प्लस करेंगे. 5 और 4 को प्लस करेंगे. आपको मैंने बताया था प्लस कैसे करते हैं. जो बिगर नंबर है उसको माइंड में रख लीजिए और छोटे वाले को फिंगर पे रख लीजिए. बिगर नंबर 5 है, स्मॉलर नंबर 4 है. तो 5 माइंड में है, 4 फिंगर्स पे है. तो 5 के आगे से गिनेंगे. विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स. 6, 7, 8, 9. वी विल राइट हियर 9. 6 में हम 0 ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा. और 3 और 2 कितना होता है, 3 प्लस 2 इज 5. सो चिल्ड्रन वी गॉट आंसर 569. तो हमको लिखना जरूरी है. ये आंसर इज 569 marbles. ओके 569 marbles. टोटल मार्बल्स कितने हैं, 569. आंसर इज 569 marbles. ओके सो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं. मार्बल रोहन हैज, मार्बल्स चेरी हैज. और यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, इन बोथ द वेज यू कैन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू. आई होप दिस इज क्लियर. आपको समझ में आ गया होगा. रोहन हैज 365 marbles, चेरी हैज 204 marbles. टोटल मार्बल्स हमने इन दोनों को प्लस किया और हमारा आंसर आया 569. सो आंसर इज 569 marbles. टोटल मार्बल्स कितने हैं, 569. ओके नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन. Let's take the second question. Second question is, John solved 126 questions. Jatin solved 262 questions. How many questions did they solve? John ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 126 क्वेश्चंस. जतिन ने कितने सॉल्व किए, 262 questions. Now the question is, how many questions did they solve? मतलब उन्होंने टोटल दोनों का मिलाकर कितने क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए. ठीक है, तो लेट्स राइट द क्वेश्चन नंबर 2. John solved 126 questions. Jatin solved 262 questions. Okay, Jatin solved 262 questions. क्वेश्चन क्या है फिर हमारा, how many questions did they solve? Okay, now solution. क्या इसका solution हम लिखेंगे, questions John solved, question Jatin solved. या number of question John solved, number of question Jatin solved. पर आपके लिए मैं बिल्कुल सिंपल बताना चाहती हूँ.
इसीलिए हम जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल हम स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो क्वेश्चंस जतिन सॉल्व्ड, क्वेश्चंस जॉन सॉल्व्ड, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जतिन सॉल्व्ड, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जॉन सॉल्व्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जतिन सॉल्व्ड, ऐसे लिख सकते हैं। या सिंपली जतिन सॉल्व्ड डायरेक्टली आप यहां से ले सकते हो, जॉन सॉल्व्ड ना जतिन सॉल्व्ड, दोनों ढंग से आप लिख सकते हो। हम ऐसा स्टेटमेंट लेंगे जो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में से ले सकते हैं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे जॉन सॉल्व इक्वल टू 126 क्वेश्चंस। ठीक है, ये डायरेक्टली हमने क्वेश्चन में से ले लिया, जॉन सॉल्व 126 क्वेश्चंस, इस तरह से हमने स्टेटमेंट ले लिया। अदरवाइज यू कुड राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जॉन सॉल्व, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन JATIN जतिन सॉल्व, जतिन ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 262 क्वेश्चंस। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते थे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस जतिन सॉल्व, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हमने डायरेक्टली क्वेश्चन में से स्टेटमेंट उतारा है ताकि आप आराम से इसे लिख सके। जतिन सॉल्व इक्वल टू 262 क्वेश्चंस। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड दे सॉल्व। अभी टोटल क्वेश्चंस यहां पे हम लिखेंगे, टोटल क्वेश्चंस सॉल्व। टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो हमें क्या करना है? 1 2 6 में 262 को ऐड कर देना है, दैट्स ऑल। इसको हम ऐड करेंगे, सो लेट्स ऐड। चलिए इसको ऐड करते हैं हम। 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होता है? 6 में हमें 2 प्लस करना है, तो 6 के आगे से गिनेंगे, 7 8। हियर ऑल्सो 6 प्लस 2, मैंने आपको समझाया था कि नंबर का अरेंजमेंट चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता है। 6 पहले लिखे, 2 बाद में लिखे, या 2 पहले लिखे और 6 बाद में लिखे, आंसर विल रिमेन सेम। अगर नंबर की अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाती है उससे आंसर चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 6 2 है, यहाँ पे 6 और 2 को ही प्लस करना है, तो आंसर विल रिमेन सेम। 2 प्लस 6 भी 8 ही होगा और 6 प्लस 2 भी 8 ही होगा। अब 2 प्लस 1 3। सो आवर आंसर इज, यहां पर हम आंसर लिखेंगे, आंसर इज 388 क्वेश्चंस। ओके, आंसर लिखना जरूरी है। आंसर इज 388 क्वेश्चंस। आपको समझ में आया? सिंपली हमने क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट ले लिया है डायरेक्ट। जॉन सॉल्व 126 क्वेश्चंस, जैसे यहां लिखा है जॉन सॉल्व 126 क्वेश्चंस। जतिन सॉल्व इक्वल टू 262 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन सॉल्व, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो हमने देखा इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो दो नंबर्स थी हमारे पास, 126 एंड 262, दोनों को हमने ऐड किया एंड वी गॉट द आंसर 388. It means total 388 questions were solved. Total 388 questions solved हुए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। आपको स्टेटमेंट लिखना भी थोड़ा थोड़ा आ गया है ना। चिल्ड्रन, आपके बुक में जो दिया है उसमें स्टेटमेंट्स नहीं दिया, डायरेक्टली ऐड किया हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू हाउ टू राइट स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये आपको आगे लिखना ही होगा। ये जब आप थोड़ी सी एक क्लास और आप आगे जाओगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए
अभी से छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा। इसी बुक में आगे आपको और भी कई ऐसे स्टेटमेंट्स वाले स्टोरी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एडिशन स्टोरीज है तो आपको सब्ट्रैक्शन स्टोरीज मिलेंगे, डिविजन स्टोरीज मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज मिलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखने की, सो दैट आपको जब आगे लिखना पड़ेगा तो फिर आपको ये प्रैक्टिस रहेगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चंस किए। नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, third one. A shopkeeper sold 258 eggs on Monday. A shopkeeper sold 258 eggs on Monday. He sold 321 eggs on Tuesday. How many eggs did he sell in 2 days? अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक शॉपकीपर है, उसने वो एग्स बेचता है, तो हमें ये देखना है कि उसने टोटल कितने एग्स बेचे 2 डेज में। उसके 2 डेज का कितना सेल है वो हमें बताया गया है कि 2 दिन में उसने कितने अंडे बेचे। हर एक मतलब मंडे को कितना बेचा, ट्यूसडे को कितना बेचा, और तो दोनों दिन में उसकी टोटल सेल कितनी हुई, टोटल उसने कितने अंडे बेचे, कितने एग्स उसने सेल की। ठीक है, तो शॉपकीपर ने मंडे को कितने सेल किए थे, 258 एग्स ही सोल्ड, एंड ऑन ट्यूसडे ही सोल्ड 321। 2 दिन उसने ये सब सेल किया, तो टोटल ये दोनों दिन मिलाकर उसने टोटल कितने एग्स सेल किए। ठीक है, दोनों दिन का हम पता करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितने एग्स सेल किए इन 2 दिनों में। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को। लेट्स राइट द क्वेश्चन। और shopkeeper sold 258 eggs on Monday. मंडे को उसने 258 eggs बेचे। He sold 321 eggs on Tuesday. Okay, Tuesday को उसने कितना सोल्ड किया, he sold 321. Now our question is, how many eggs did he sell in 2 days? दो दिनों में उसने टोटल कितने एग्स बेचे। तो चलिए पहले हम इसका एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं। ठीक है, हम स्टेटमेंट छोटा एक स्टेटमेंट हम रेडी करते हैं आपके लिए। शॉपकीपर सोल्ड एग्स ऑन मंडे, या एग्स सोल्ड ऑन मंडे। सिंपल सॉल्यूशन हम लिखते हैं। एग्स की बात हो रही है तो हम लिखेंगे एग्स सोल्ड। ठीक है, एग्स सोल्ड ऑन मंडे, एग्स सोल्ड ऑन मंडे। एग्स सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को कितने एग्स सोल्ड हुए, 258। ओके, एग्स
sold on Tuesday. ट्यूसडे को कितने एग्स उसने बेचे? हाउ मेनी एग्स ही सोल्ड? 321. ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? टोटल एग्स सोल्ड, टोटल एग्स सोल्ड, ठीक है। टोटल एग्स सोल्ड इन 2 days नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको समझ में आ रहा है। जैसे टोटल एग्स सोल्ड करते हैं और हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। हम अपना सॉल्यूशन 258 प्लस 321 और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम ऐड करके हम देखेंगे कि टोटल कितने एग्स दिखे। ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 इज 9. Okay, children, we have already done many sums on addition of 3-digit numbers. हम ऑलरेडी बहुत सारा कर चुके हैं। तो फिंगर पे कैसे गिनना है, कैसे माइंड में रखना है, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो उसी हिसाब से हम इसको यहाँ भी ऐड करेंगे। तो 5 पे आप 2 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, 5 माइंड में है, 6, 7, 3 और 2 को प्लस करते हैं। 3 प्लस 2 इज, यस, 3 प्लस 2 इज, यस, 5. 3 प्लस 2 इज 5. सो आवर आंसर इज 579 एग्स. तो आंसर हमारा हम यहाँ लिखेंगे, आंसर इज 579 एग्स. टोटल कितने एग्स सोल्ड हुए? 579 eggs. Okay, go through the question. अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। A shopkeeper sold 258 eggs on Monday. He sold 321 eggs on Tuesday. How many eggs did he sell in 2 days? 2 दिन में उसने कितने eggs बेचे? तो हमारा सॉल्यूशन हमने क्या लिखा है? Eggs sold on Monday. मंडे को कितने एग बेचे? तो हमने लिखा 258. एग्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे 321. टोटल एग्स सोल्ड, टोटल कितने अंडे हैं वो हमने देखा 258 प्लस 321. 258 प्लस 321 एंड वी गॉट द आंसर 579. तो हमारा आंसर है 579 एग्स. ठीक है, ये आपने देख लिया। चलिए, अब आपको जब अपने खुद से करने को दिया जाएगा तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस. आपको बस स्टेटमेंट थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है लिखने की, वो भी आपको आ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल लर्न. इसको हम मिटा देते हैं. Okay, let's do next question. Question number 4. Yes, question number 4 हम अभी करेंगे. क्या है question number 4? There are 463 boys. There are 463 boys and 225 girls in a school. एक स्कूल में बॉयज कितने हैं? 463 बॉयज हैं. गर्ल्स कितनी है? 225 गर्ल्स हैं. ठीक है, एक स्कूल है जहां पर बॉयज 463 है और गर्ल्स 225 ही हैं. कम है ना गर्ल्स. अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ कम या ज्यादा नहीं है. हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल. तो टोटल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं? एक स्कूल है जहां पे कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं. तो टोटल हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में तो गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाएंगे ना. जब हम कहते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का कोई जेंडर नहीं होता ना.
स्टूडेंट्स का कोई जेंडर नहीं होता, वो कॉमन जेंडर में आता है स्टूडेंट। उसमें लड़कियां भी आती हैं और लड़के भी आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो हमें मिल जाएगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे। देयर आर 463 boys and 225 girls in our school. Okay. How many students are there in the school? How many students are there in the school? ठीक है, तो अब हम इसको करें सॉल्व, है ना। अब इसको हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो बहुत इजी है, ठीक है। आप दो ढंग से आप इसको लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू, या फिर सिर्फ आप लिखिए बॉयज इक्वल्स टू 463, गर्ल्स इक्वल्स टू 225। नंबर ऑफ बॉयज भी लिख सकते हैं या सिर्फ बॉयज भी लिख देंगे तो चलेगा। अभी आप क्योंकि बहुत छोटी क्लास में है तो आप सिर्फ बॉयज लिखेंगे तो भी चल जाएगा, अदरवाइज ट्राई टू राइट नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो बॉयज 463, गर्ल्स 225, टोटल स्टूडेंट, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो टोटल स्टूडेंट्स बताना है। तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स हम 463 के साथ ऐड करेंगे 225। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमने लिख दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिख दिया। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स पता करना है बाय एडिंग बोथ दीज नंबर्स। इन दोनों नंबर को अब हम करेंगे ऐड। तो 5 और 3 को, या 3 और 5 कह लीजिए, दोनों को हम ऐड करेंगे। वी विल ऐड 5 and 3। तो बिगर नंबर माइंड में रखिए, स्मॉलर नंबर फिंगर पे रखिए एंड काउंट। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 7, 8। सो वी विल राइट हियर 8। ओके, 6 and 2 वी विल ऐड 6 and 2। 6 and 2 प्लस करने पे कितना आता है? 6 और 6 को 2 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यस, 8। वेरी गुड, 8। 4 plus 2, 4 plus 2 कितना होगा? 6। वेरी गुड, 4 plus 2 6। नाउ यू कैन कैलकुलेट इन माइंड। आप स्मार्ट हो गए हैं, अब आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 688। मतलब उस स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 688। बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? हमारे अपने स्कूल में तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं। आंसर है 688। चिल्ड्रन, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में जो आंसर लिखना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड राइट, जो लास्ट में हम लिखते हैं 688 स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ, जो भी क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? ताकि आंसर बताया जा सके। तो ये तो हमने सॉल्व किया, दिस इज आवर सॉल्यूशन, बट आंसर इज दिस, है ना। ये हमने सॉल्व करके बताया कि कैसे हमें पता चला, हाउ वी गॉट दिस आंसर। ये आंसर हमको कैसे मिला, ये हमने यहाँ करके बताया। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये लिख देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमें आंसर कैसे पता चला, है ना। कैसे हमें आंसर पता चला? सिर्फ ये लिखने से भी नहीं चलेगा।
और सिर्फ ये अगर लिखेंगे तो आगे सॉल्व करके बताया बट आंसर तो दिया नहीं, हमने तो क्वेश्चन पूछा था, उसका तो आंसर चाहिए। तो इसीलिए ये हम सॉल्यूशन लिखते हैं और ये हम आंसर लिखते हैं। सॉल्यूशन हम लिखते हैं कि हमने ये वाला आंसर कैसे पता किया, वो हमने यहाँ पर बता दिया, और यहाँ पे हमने बताया कि ये हमारा आंसर है। तो आंसर भी जरूरी है और सॉल्यूशन भी जरूरी है। सो चिल्ड्रन, टुडे वी डिड 4 questions, 4 हमने एडिशन स्टोरीज की, एंड वी विल डू सम मोर बट नॉट इन टुडेज वीडियो, वी विल डू दोज इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो के लिए हम 4 ही हमने किया, इसी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।